Good evening, friends. I am Lokesh Prajapat and I am here for analysis of 194R section, that is deduction of tax on benefit or perquisites in respect of business or profession. It is currently introduced by the Income Tax Department through circular number 12 dated 16 June 2022. So we can proceed and we can analyze this particular section in the different way and different examples with the help of different examples with the issues already addressed by the income tax department in that particular circular. So we can start 194R from onwards. Okay, so first of all we can just check that what is the applicability, whom it will applicable. So it is applicable to any person including all type of assessee. इसमें इन्होंने एनी पर्सन मीन्स ऑल पर्सन्स को कवर किया है. सेकेंड, रेट ऑफ टैक्स in that particular section 194R there will be rate of 10% of the value or aggregate of value of such benefit or perquisites. इसका एक्चुअली जो रीज़न है वो क्रक्स है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. लाइक एम्प्लॉयर से कुछ अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, जैसे सैलरीड पर्सन को कार फैसिलिटी मिल रही है, ड्राइवर फैसिलिटी मिल रही है, या डॉक्टर्स क्लिनिक्स वगैरह पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं, फ्रीबीज़ मिल रही है. तो गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है. तो इसमें इन्होंने इसका क्राइटेरिया इतना वाइड रखा है कि बहुत सारा इसके अंदर कवर किया हुआ है. तो अपन डिस्कस करते हैं. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगा, सो इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस. Okay, so we can start. Third point is non-applicability. In this particular thing, non-applicability, if value of such benefit or perquisites is less than 20,000 during the financial year. Okay, समझे? During the financial year, if anyone received 20,000 or more perquisites from the company, then you will be liable for a deduction under section 194R for 10% of TDS on such value. Second, non-applicability will be there in an individual or HUF whose total sale, gross receipt or gross turnover does not exceed 1 crore rupees in case of business. In short, it want to say that in last year or in current year you are not audited under section 44AB, that is income tax audit. Third is non-applicability point, 50 lakh rupees in case of profession during the financial year. During the financial year, if you have exceeded 50 lakh rupees, then you have to compulsorily liable for audit. So if you don't have such income, then you are not covered under section 194R. Okay, the fourth point is who is liable to deduct, because someone has to deduct and deposit in government account. So that's why we need to understand that whose liability is to deduct TDS under section 194R. The person responsible for providing such benefit or perquisite shall deduct tax as applicable. इन केस ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी ने आपको सैलरी के साथ साथ अदर परक्यूसिट्स या पार्क्स वगैरह दिए हैं, आपको उन्होंने फ्लैट दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका रेंट कंपनी बियर कर रही है, एनुअली उसका वैल्यू 20,000 के ऊपर जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली, एनुअली. इफ़ एनुअली दैट बेनिफिट एक्सीडेड 20,000 देन whole perquisites will be liable to deduct TDS under section 194R. Okay, when to deduct, that is the point. Government wants to control, so before releasing the benefit or perquisites, the person who is releasing payment or releasing the benefit or perquisites need to ensure that required tax has been deducted and paid by person receiving the such benefit or perquisites. अगर कोई एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिल रही है तो पहले टैक्स कटेगा, उसके बाद फैसिलिटी मिलेगी, इन शॉर्ट. तो 194R
is TDS at 10% on benefit or perquisites arising out of benefit businesses or profession. In the Finance Act 2020 ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है एंड 1 जुलाई 2022 से ये एप्लीकेबल हो गया है। तो यहाँ पे बेयर एक्ट का लैंग्वेज भी अपन ने यूज़ किया है। दिस न्यू सेक्शन 194 आर रिक्वायर्ड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट 10% बाय एनी पर्सन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्यूसिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट एक्सीडिंग ₹20,000 in value in a year to a resident arising from the carrying out of any business or exercise of any profession by such resident recipient। ओके और इसमें बाकी वही सब जो नॉन एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट है वो दिए हुए हैं। तो अपन यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं कुछ फ्यू इश्यूज लिस्टेड बिलो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सर्कुलर में भी डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं को अपन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके सो वी हैव लिस्ट आउट द इश्यूज। नंबर 1 इज रिलेटेड टू डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस। सेकेंड okay similar aspects. So we have listed out around 13 issues, so we are coming to one by one. Number 1 is dealer business conference, where it is held with the prime object to educate dealers and customer about any of the following or similar aspect. okay तो यहाँ पे अपन डीलर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वगैरह डीलरशिप वगैरह देती है, तो डीलर से रिलेटेड अगर आप कोई सेमिनार अटेंड करवा रहे हो जिसका प्राइम ऑब्जेक्ट है डीलर्स को एजुकेट करना और कस्टमर को एजुकेट करना, रिलेटेड टू आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हो, ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डीलर्स एंड कस्टमर, टीचिंग सेल्स टेक्निक टू डीलर एंड कस्टमर, एड्रेसिंग क्वेरीज ऑफ द डीलर एंड कस्टमर, रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट विद डीलर एंड कस्टमर। तो ये एक जनरल एग्जांपल्स है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हो सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड, इट इज़ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। सो एज पर इनकम टैक्स सर्कुलर 194R इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ कम टू सेकेंड इश्यू। सेकेंड इश्यू इज़ डीलर बिजनेस dealer business conference, where it is in the nature of incentive benefit to select dealer customer who have achieved particular target। बहुत से बार क्या होता है कि सेल्स पर्सन मार्केटिंग पर्सन्स को टारगेट्स मिलते हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलता है। तो इंसेंटिव के केस में क्या है कि आपका मैक्सिमम 20,000 का थ्रेशोल्ड देखा जाएगा, subject to deduction of TDS at 10% on fair market value of such incentive in case or kind, or such purchase value if acquired before providing these if the aggregate value of such incentive exceed ₹20,000 in a year per recipient। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई सेल्स के पर्सन और मार्केटिंग के पर्सन और आपने कोई टारगेट अचीव किया है, तो इन दैट केस 20,000 से ऊपर अगर आपका इंसेंटिव जाता है इन अ ईयर, देन 194R विल बी एप्लीकेबल। कम टू द नेक्स्ट डीलर रिलेटेड इश्यूज। वी हैव लिस्टेड आउट सम इश्यूज विच जनरली वी गो थ्रू। नंबर 1 इज एक्सपेंसेज एट्रीब्यूटल टू लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस। Expenditure incurred for family member accompanying the person attending dealer or business conference. Expenditure on participants of dealer business conference for days which are on account of prior stay or overstay beyond the date of such conference। इसमें 3 ऐसे इश्यूज कवर किए हैं। नंबर 1, आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेज है। नंबर 2, आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद इनवाइटेड हो बट आप फैमिली मेम्बर को भी साथ में लेके जा रहे हो, तो फैमिली मेम्बर को साथ में लेके जा रहे हो तो दैट एक्सपेंस शुड बी कवर्ड अंडर 194R। नंबर 3 उन्होंने क्या कवर किया है,
अगर आप कॉन्फ्रेंस आज का है, आप एक दिन पहले आ गए या एक दिन बाद स्टे कर रहे हो यहाँ पे, तो कॉन्फ्रेंस डे के अलावा जो खर्चा होगा दैट विल बी कवर्ड अंडर 194 आर। उसके लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोला है कि 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इंसेंटिव विल बी लाइबल फॉर डिडक्शन। कम टू द नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट और MRP लिस्टेड प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट्स वगैरह बिलिंग में ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है, तो डेट वहाँ पे 194 आर एप्लीकेबल नहीं है। अपन 5th इश्यू पे आते हैं। एडिशनल क्वांटिटीज़ प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विद द बेसिक प्राइस, दैट इज़ 1+1 और सिमिलर स्कीम। अगर आपको कुछ एडिशनल क्वांटिटी मिली बट वो बेसिक प्राइस पे मिली है तो 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 6, इंसेंटिव इन केस और काइंड गिवन टू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर्स बेस्ड ऑन टारगेट कंप्लीशन। तो अपन ने सिमिलर इश्यू ऊपर कवर किया हुआ है, वहाँ पे 20,000 का लिमिट देखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर का एंड अकॉर्डिंगली डिडक्ट TDS। नाउ कम टू द 7th पॉइंट, लॉयल्टी रिवॉर्ड इन केस बैक प्रीपेड वाउचर काइंड इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑन फ्यूचर परचेज। अगर ऐसे कोई भी केस आपको मिलता है, ये केस बैक होता है लॉयल्टी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स वगैरह के केस में, देन 20,000 विल बी अ सीलिंग लिमिट फॉर दैट। गिफ्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटीज, वैल्यू, टाइमिंग और परचेज, अर्ली बर्ड स्कीम। अर्ली बर्ड स्कीम अगर वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आपका 20,000 का लिमिट देखा जाएगा। Now come to the 9th issue, incentive and gifts such as bag kit, gold, silver coins. In case of festival occasions, many companies give gift and incentive to their customers, dealers, employees. Then in that case, value of that particular gifts and incentive and bags, kits, coins, if exceeded 20,000, then company liable to deduct TDS on that particular gift. Incentives such as free company sponsored entertainment tour for target completion. अगर कंपनी ने आपके लिए कोई ट्रिप स्पॉन्सर किया है टारगेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ कम टू द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड एज स्पेशल केस। अगर आपको एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड मिला है, उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, दैट शुड ऑल्सो कवर्ड अंडर 194 आर। नाउ कम टू द इंश्योरेंस कवरेज फॉर डीलर, हिज एम्प्लॉय, हिज फैमिली। कंपनी ने अपने डीलर्स के एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को कवर किया है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्यूसिट्स, एंड परक्यूसिट्स इफ ग्रेटर देन 20,000 देन इट विल liable for deduction of TDS. Issue 13, customary gifts to the business professional associates on festive occasion. Similar, we have already covered that in case of such customary gifts, so 20,000 का ceiling limit will be there, and beyond that we have to deduct TDS. So now come to the direct section, in which particular section what have written. So just go through with that, you will get a good idea, and if you want that particular PDF, then ping me, I will email you. This is the direct section, you can find it at income tax department website also. Thank you so much.